पश्चिम मेदिनीपुर खड़गपुर शहर म्यूनसिपैलिटी इलाके में आज एक देवाशीष चौधरी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजन किया है। इस प्रेस वार्ता में देवाशीष चौधरी ने क्या क्या कहा, आइए आप लोगों को सुनाते हैं। इस प्रेस वार्ता को लेकर वार्ड नंबर 16 के काउंसलर अभिषेक अग्रवाल ने क्या क्या कहा, आइए आप लोगों को भी सुनाते हैं। ডেকেছিলাম একটি বিষয় জানাবার জন্য। আমাদের জেলার আইনসভার প্রাক্তন সদস্য দিলীপ ঘোষ প্রায় সময় আমাদের সম্পর্কে কটূক্তি করেন, হুঙ্কার দেন, দেখে নেব, মাটিতে পুঁতে দেব, কেটে নেব, নৈতিকতা কথা বলেন। তাই আমি তথ্য জানার অধিকার আইনে রেলকে চিঠি করেছিলাম যে বাংলোতে উনি থাকেন সেই বাংলোটা কার নামে অ্যালট করা হয়েছে এবং রেলের নিয়ম অনুযায়ী রেলওয়ে এলাকায় যে সমস্ত কোয়ার্টার বাংলো আছে তার নাম্বার থাকার কথা এবং তার নামে অ্যালট করা হয়েছে তার কপি আমাকে দেওয়ার জন্য এই সমস্ত কয়েকটি বিষয় জানিয়েছিলাম, চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম। 24শে মার্চ গতকাল রেল উত্তর দিয়েছে, তাতে জানিয়েছে যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের নিয়ম, রেলের কোয়ার্টার এবং বাংলোতে নাম্বার থাকা। যে কোয়ার্টারটা সিনিয়র সিকিউরিটি অফিসের সামনে যে বাংলোটি আছে যার নাম্বার নেই, ওনারা জানিয়েছেন ওই নাম্বার হচ্ছে 677। জানতে চেয়েছিলাম ওই বাংলো কার নামে অ্যালট করা হয়েছে, বলেছে এই মুহূর্তে ওই বাংলো কারোর নামে অ্যালট করা হয়নি। তারপরে আমি চেয়েছিলাম যে অ্যালট করা হয়েছে যার নামে তার কপি দেওয়ার জন্য। ওরা দিকে বলেছে কপি দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, যেহেতু বাংলো কারোর নামে অ্যালট করা নেই। 5 নম্বর জানতে চেয়েছিলাম এনি আদার ইনফরমেশান দ্যাট মে বি রেলিভেন্ট টু দি ইস্যু। তাতে ওনারা বলেছেন এই বাংলোটি তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়কে অ্যালট করা হয়েছিল, যিনি এক্স মেম্বার অফ প্যাসেঞ্জার সার্ভিস কমিটি। 1/1/2019 সালের 1 জানুয়ারি ওনার নামে তুষারকান্তি ঘোষের নামে বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং অ্যালটমেন্ট অর্ডার নাম্বার ছিল W/বাংলো/GAZ এবং সেটার মেয়াদ শেষ হয়েছে 31/3/2020। 2020 সালে 31শে মার্চ হয়নি। তাই আমাদের প্রশ্ন, লোকসভার আইনসভার একজন প্রাক্তন সদস্য কিভাবে রেলওয়ে বাংলো দখল করে ওখানে থাকেন, যার অনতিদূরেই ডিআরএমের অফিস এবং ঠিক সামনে সিনিয়র সিকিউরিটি কমিশনারের অফিস। উনি কয়েকদিন আগে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে খড়গপুর শহরে রেলওয়ে সেটেলমেন্ট এলাকায় রেল রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে, কারণ এখানকার মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আমরা মনে করি এই মুহূর্তে ওই বাংলো ব্যবহার করার কোনো নৈতিক অধিকার দিলীপবাবুর নেই। উনি ওই বাংলো ব্যবহার করার ফলে বহু বহিরাগতরা ওখানে আসছে এবং রেলওয়ে কলোনি সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। দ্বিতীয়, অবিলম্বে ওনার বাংলো ছেড়ে দেওয়া উচিত। তৃতীয়, রেলওয়ে প্রশাসনের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, ওনারাই চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন ওনারা কি করে অ্যালাউ করছেন ওই বাংলো অবৈধভাবে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে দিচ্ছেন। অবিলম্বে ওই বাংলো রেল নিজের হ্যান্ডওভার নিক, রেলের অফিসার রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য সেই বাংলো অ্যালট করা হবে। এই কথাগুলো জানাবার জন্য আজকে আপনাদেরকে ডেকেছি। खड़गपुर म्यूनसिपैलिटी वार्ड नंबर 16 काउंसलर अभिषेक अग्रवाल ने क्या क्या कहा, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग बताया, मेरे को सुनने में आ रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि दिलीप दा जो बंगला में रह रहा है खड़गपुर में, वो रेलवे का बंगला है, उसमें वो मैंने अधिग्रहण कर लिया, मैंने अनऑफिशियली रह रहा, तो उनका अधिकार नहीं है उसमें रहने का। तो ये विषय ये लोग एक बार नहीं कई बार बोला है। दिलीप दा जब से बंगला में रह रहा तब से
10 बार बोल दिया है कि ऐसा होना है, ये गलत हो रहा है। तो देखिए उनके पास एक आरटीआई भी वो किया है, वो आरटीआई के बेस में वो बात को बोल रहा है कि वो आरटीआई में लिखा है कि तुषार कांति घोष जो कि रेल बोर्ड मेंबर है, उनका नाम से वो बंगला अलॉट था और उसके बाद में किसी के नाम से अलॉट नहीं हुआ, लेकिन दिलीप दा उसमें रह रहा है। तो सबसे पहला बात है कि दिलीप दा वो बंगला में रहता नहीं। दिलीप दा का अपना शेड्यूल रहता है, वो स्टेट प्रेसिडेंट रहा है बंगाल बीजेपी का, तो बंगाल में संगठन का काम करना वो उनका रूटीन प्रोसेस है। तो इसी बीच यहाँ का वो जनप्रतिनिधि है, यहाँ का एमएलए रह लिया, एमपी रह लिया, तो बहुत सारा यहाँ पर लोगों का काम है जो उनको करना पड़ता है, लोगों का काम। तो तुषार कांति घोष चूँकि दिलीप दा का वेल विशर है, वो हम लोग का एक समय में हम लोग का बीजेपी का भी मीडिया सेल का ये भी है, इंचार्ज भी है, और इससे पहले भी हम लोग का पार्टी का और भी पोस्ट में रह चुका है। तो उनसे वो वेल विशर होने का नाते तरीके से कब्जा रखा है। तब जाइए नेता सरकार का क्या स्थिति, वहाँ पर ही वो क्या रेल के ऑफिस कर दिया, वहाँ पर बनाओ, हाँ वहाँ पर ही एयर कंडीशन लगा के रखा है, सुनने में आता, हम लोग तो कभी गया नहीं, पब्लिक के मुँह से सुनता है। वो करंट उसको कौन दे रहा है? और उसके बाद वहाँ पर और भी 18 नंबर वार्ड में इतना बड़ा ऑफिस है, टीएमसी का कितना सारा ऑफिस है। तो दिलीप दा को पब्लिक का काम देखने के लिए वो जगह को दिया, तो पब्लिक का काम वहाँ से दिलीप खड़गपुर से करता है, उसमें ये लोगों को बोलने का क्या अधिकार है? जो लोग खुद अनऑथराइज्ड जगह पे ऑफिस बना करके आलीशान ढलाई उलाई करके एयर कंडीशन लगा करके सब रेल के चोरी का करंट यूज़ करके वहाँ पर नेतागिरी कर रहा है, उन लोगों को तो बोलने का अधिकार नहीं है। जो जिसका घर खुद शीशा का होता है वो दूसरा पर तो पत्थर मारेगा नहीं। तो दिलीप दा तो वहाँ पर अपना नाम पे रजिस्ट्री नहीं करा लिया वो बंगला को, दिलीप दा तो ऐसा किया नहीं है, तो इसीलिए ये लोग तो अपना नाम से लिखा लिया, समझ लीजिए। वहाँ पर तो एकदम सब कुछ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, टीएमसी का झंडा पोस्टर बैनर ऑफिस में लगा दिया। क्या आप लोग वहाँ देखता है बंगलों में कभी कि बीजेपी का वहाँ पर झंडा पोस्टर बैनर लग गया? वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो एक सांसद जैसा आता है, अपना क्षेत्र के लोगों से मिलने का काम है, वो थोड़ा बहुत मुलाकात करता है, अगर एक दिन रुक जाता है तो वहाँ सो लेता है, बाकी वो पब्लिक से मिल करके अपना चला जाता है। तो पब्लिक के बीच में रहना उनका काम है, चाहे संगठन का काम से रहे, चाहे जनप्रतिनिधि के तौर पर रहे। इसलिए ये सब आरोप आईवॉस है। अभी कुछ ही दिन पहले, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, टीएमसी का जो करप्शन है, टीएमसी का नेता लोग जो करप्शन किया, वो कारण से 26,000 के लगभग यहाँ पर टीचर्स लोगों का नौकरी किया है। ये विषय को लोग सोचता है कि वाइट वॉश कर देगा, ये विषय से ध्यान घुमा देगा, इसीलिए ये सब फालतू का टॉपिक को लेके आ रहा, कौन कहाँ रहता, कौन कहाँ खाता, कौन कहाँ सोता। तो इसलिए राजनीति करना है तो आप आइडियोलॉजिकली बात करिए, आप वो चीज़ 26,000 परिवार का वो जवाब दीजिए, बंगाल को जवाब दीजिए पहले जनता को कि क्या क्यों किए करप्शन, आप लोग किया क्यों, कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक राय दिए कि ये पूरा पैनल को बातिल करना पड़ा, 26,000 लोगों का नौकरी किया, उन लोगों का घर संसार आप कौन देखेगा? टीएमसी के नेता लोग देखेगा जो लोग करप्शन किया। तो जो लोग करप्शन करता है, जो लोग बंगाल को आज इस गति में लेके चला गया, वो लोग कौन कहाँ रह रहा, कौन कहाँ खा रहा, कौन कहाँ पी रहा, ये सब देख करके राजनीति करने का उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। उन लोगों को जनता के सामने जा करके सवाल का उत्तर देना चाहिए। और ये लोग कुछ ही दिन का मेहमान है, 1 साल में इनका सरकार और रहेगा भी नहीं, क्योंकि 26,000 नौकरी जाने के बाद में बंगाल का जनता और ऐसा उनको माफ़ नहीं करने वाला है, क्योंकि भारत के इतिहास में इतना बड़ा करप्शन और इतना बड़ा पैमाना पे नौकरी लोगों का किया होगा बोल के हमको तो अपना राजनीतिक जीवन में